Even in July, God wants you to hit the target. He is going to make you hit your target. Let's go into this month with that confidence. My dear young friends, it's a joy to see you in July. मेरे युवा दोस्तों, जुलाई में आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। Half a year is gone, so what is your midterm report card? आधा वर्ष बीत चुका है, आपकी अब तक की परीक्षा का परिणाम कैसा रहा? 100% or pass or fail? 100% अंक या आप पास हुए या फेल? It doesn't matter. This month, look forward to something great. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस महीने आइए कुछ और बड़ी बातों की ओर ध्यान लगाएं। I'm sure the Lord has been building you up each month throughout this year. मुझे यकीन है कि प्रभु ने पूरे वर्ष भर हर महीने आपको मजबूत किया है। Even in July, God wants you to hit the target. जुलाई में भी परमेश्वर चाहते कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। He is going to make you hit your target. वह आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। So make sure you have a big target in mind. इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके दिमाग में आपका लक्ष्य बड़ा हो। I'm sure you would be wanting to accomplish something in your life. मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते होंगे। Whether it's in your studies, whether it's in your talent, whether it's in your profession. चाहे यह आपकी पढ़ाई में हो, आपकी प्रतिभा में या आपके पेशे में हो, Whether it's in your ministry. या फिर आपके सेवा कार्य में, What you want to achieve, God is going to help you hit the target. आप जो भी हासिल करना चाहते हो उसे प्राप्त करने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। Let's go into this month with that confidence. आइए इस महीने की शुरुआत इसी विश्वास के साथ करें। Psalm 127:4 says, भजन संहिता 127 वचन 4 कहता है, The children who are a reward from God are like arrows in the hands of a mighty warrior. लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं जो पराक्रमी योद्धा के हाथों में तीर के समान होते हैं। Such a person will never miss the target ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता, because a mighty warrior is experienced in battle. क्योंकि एक पराक्रमी योद्धा युद्ध में अनुभवी होता है। He has hit maybe thousands upon thousands of arrows. उसने शायद हजारों हजार तीर चलाए होंगे, And so he will not miss. इसलिए उसका निशाना नहीं चूकेगा। You will be like an arrow which hits that target. आप भी उस तीर की तरह होंगे जो सीधे निशाने पर लगता है। God is going to shape you and empower you. परमेश्वर आपको आकार देंगे, आपको सशक्त It बनाएंगे। is not you who is going to go and work and perform. फिर यह आप नहीं होंगे जो जाकर काम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। Today we are going to ask God's Holy Spirit to rise up within us and do supernatural things. आज हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर जागृत हो और अलौकिक काम करे। Every time I need to do something or I need to perform, I don't rely on myself. जब भी मुझे कुछ करना होता या कुछ प्रस्तुति देनी होती तो मैं खुद पर निर्भर नहीं रहता। I pray that simple prayer saying, Holy Spirit, rise up within me. मैं बस यही आसान सी प्रार्थना करता कि पवित्र आत्मा आप मेरे भीतर जागृत हो। I am inadequate, मैं तो अपर्याप्त हूँ, but you are more than enough. परंतु आप मुझ में पर्याप्त हैं, काफी हैं। You perform this for me. आप मेरे लिए इसे पूरा करें। As I'm going to do your will and your plan. जिस रीति मैं आपकी इच्छा और योजनाओं का पालन करने वाला हूँ, And God makes me do supernatural things. और फिर परमेश्वर मुझसे अलौकिक काम करवाते हैं। And in hitting the target, God is going to help us in two things. और लक्ष्य को भेदने में परमेश्वर दो बातों में हमारी मदद करेंगे। Firstly, focus is important for such a person who's going to hit the target. पहली बात, लक्ष्य को भेदने वाले व्यक्ति के लिए एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। Absolute focus and absolute determination on that target alone. उनका पूरा ध्यान और दृढ़ संकल्प केवल उसी लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। If you see in the Olympics, for those who shoot with the bow and arrow, आपने ओलंपिक्स में तीरंदाजी करने वालों को देखा होगा। they will not wander about looking here and there on who's moving. वे इधर या उधर मुड़कर यह नहीं देखते कि कौन कौन हिल रहा है। And they will not be looking at the opponents and how they are performing. और ना ही वे अपने प्रतिद्वंदियों और उनके प्रदर्शन पर ध्यान देंगे। And you will notice that they take a lot of time in aiming. और आप देखेंगे कि वे निशाना साधने में काफी समय लगाते They'll हैं। keep on looking at the target. वे लगातार अपने उस लक्ष्य की ओर देखते रहेंगे।
and not be distracted on anything else. और किसी भी बात से विचलित हुए बिना। Like that, we need to be fixated on our target first. हमें भी सबसे पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना And होगा। always keep that focus in mind. हमेशा उस लक्ष्य को ध्यान में रखें। God gave Joseph a big vision परमेश्वर ने यूसुफ को एक बहुत बड़ा सपना दिया that he will be above his family, कि वह अपने परिवार से भी ऊपर होगा, that he'll be such a great person in life. कि वह अपने जीवन में एक बहुत महान व्यक्ति बनेगा। And he kept that vision all through his life. और उसने अपने उस सपने को जीवन भर संजोए रखा। No matter what circumstance, no matter what downfall, he always kept that vision before him. चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, उसने हर समय उस सपने को अपने सामने रखा। He never gave up on that vision. उसने कभी भी अपने उस सपने को नहीं छोड़ा। And finally, he was able to achieve it by becoming next to the king in power in that nation. और अंततः वह उस राष्ट्र में राजा के बाद सत्ता के दूसरे सबसे ऊंचे पद पर पहुंचकर इसे हासिल करने में सफल रहा। Like that, once we set a target, ठीक ऐसे ही जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, all through our hard work, all through our determination, we have to be focused on that target and not shift to other distractions. तो बिना यहाँ वहाँ भटके हमारा ध्यान उस लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रहना चाहिए। And secondly, और दूसरी बात, such a person who's going to hit the target will persevere. जो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है वह दृढ़ संकल्पित रहता है। Persevere towards that goal. अपने उस लक्ष्य की ओर दृढ़ता पूर्वक बने रहना। Philippians 3:13 and 14 says so. फिलिपियों 3:13 और 14 यही कहता है। Paul says, I forget about the things in the past, पौलुस कहता कि मैं पिछली बातों को भूलकर the former things, अतीत की उन बातों को and I push on towards the goal for the prize which God has called me for. उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया The है, great prize which God has for me. जिसके लिए एक महान पुरस्कार परमेश्वर ने मेरे लिए रखा To है। win that prize, I keep pushing on towards the goal. और उस पुरस्कार को जीतने के लिए मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता हूँ। No matter what might come in my way, I will not stop. चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मैं नहीं रुकूंगा। No matter what चाहे challenges, कितनी भी चुनौतियां क्यों ना no हो, matter what failures might also come. चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, Handling those failures are the most toughest thing. उन असफलताओं का सामना करना सबसे कठिन काम है। But my friends, you have the advantage of having the confidence that God will make you hit the target. लेकिन मेरे दोस्तों, आपके पास यह विश्वास है कि परमेश्वर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, It's not because of your efforts. और यह आपके प्रयासों के कारण नहीं It's है, not because of your power. यह आपके बल द्वारा भी नहीं है। The assurance that God will make you hit the target is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो वही हमें लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। So keep pushing on towards the goal. इसलिए उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। Getting back up even if we fail. यदि आप असफल भी हो जाएं, तो भी उठ खड़े हों। Keeping our eyes always on the prize. अपनी आंखों को हमेशा उस पुरस्कार की ओर लगाए रहें। Even for Joseph, when he was pushed to the pit by his brothers, when he was imprisoned wrongly by the master's wife, यूसुफ भी गड्ढे में डाले जाने के द्वारा, मालिक की पत्नी द्वारा गलत तरीके से कैद किए जाने के द्वारा, he never gave up तब भी उसने हार कभी नहीं मानी, because he was fixated on that target. क्योंकि वह उस लक्ष्य पर पूरी तरीके से केंद्रित था। God showed me that target. परमेश्वर ने मुझे लक्ष्य दिखा He दिया है, showed me that vision. उसने मुझे एक स्वप्न दिया है। Surely he will make me achieve it. निश्चय ही वह मुझे यह हासिल करवाएगा। I will only faithfully keep on serving him. मैं ईमानदारी से उसकी सेवा करता रहूंगा, Even if I'm thrown in the prison. चाहे मुझे जेल भी क्यों ना जाना पड़े, Even if I'm wrongly accused. चाहे मुझ पर झूठे आरोप क्यों ना लगाए जाएं, Even if I fall into the pit. भले मुझे गड्ढे में क्यों ना धकेल दिया जाए, Even if I may fail. चाहे मैं असफल भी क्यों ना हो जाऊं, I will reach that target. मैं तो भी उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा। God is giving you that spirit of zeal परमेश्वर आपको वही लगन की आत्मा दे रहे हैं, to push on towards the goal. ताकि आप उस लक्ष्य की ओर बढ़े चले जाएं। Today shall we receive it, my friends? आज क्या हम इसे प्राप्त करें मेरे मित्रों? As God is sharpening us like arrows in the hands of a mighty warrior. जैसे परमेश्वर हमें एक वीर योद्धा के हाथों में तीर की तरह तेज कर रहे हैं, He is that mighty warrior. वही तो वह शक्तिशाली योद्धा है। Right now ask Him, अभी उससे प्रार्थना
प्रार्थना करें। Make me an arrow in your hands, Lord. कहें, प्रभु आपके हाथों में मुझे एक तीर बनाइए। You cannot miss, Lord. हे प्रभु, आप चूक नहीं सकते। You are perfect. आप तो सिद्ध हैं, परिपूर्ण You हैं। will make me hit the target. आप मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। That responsibility you have taken upon yourself. इसकी जिम्मेदारी आपने स्वयं पर ले ली है। And I give you my life for that, Lord. प्रभु, इसके लिए मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। My life is in your hands. मेरा जीवन आपके हाथों में है। Conduct it, Lord. प्रभु, आप इसे संचालित Use करें, it, Lord. इसका उपयोग करें। Make me a sharp arrow that will hit the target. मुझे एक ऐसा तेज धार वाला तीर बना दें जो लक्ष्य को भेद सके। Right now, God is giving absolute focus, इसी घड़ी परमेश्वर आपको पूर्ण एकाग्रता दे रहे हैं, determination and zeal दृढ़ संकल्प और लगन प्रदान कर रहे हैं। beyond your failure, आपकी असफलताओं से भी परे, beyond the negativity, नकारात्मकता से भी परे, beyond the big challenges. बड़ी चुनौतियों से भी परे। God is giving you a big heart to see that vision, उस सपने को साकार करने के लिए परमेश्वर आपको एक बड़ा हृदय to देते हैं, believe in that vision, उस दर्शन पर विश्वास करने के लिए, and to believe that you will hit the और target. यह विश्वास करने के लिए कि आप लक्ष्य को प्राप्त Thank करेंगे। you, Lord, for a new heart. धन्यवाद प्रभु, एक नए हृदय के लिए, Thank you for a spirit of zeal and power. लगन और सामर्थ की आत्मा के लिए आपका धन्यवाद। Make your children hit their targets and make them great, Lord. लक्ष्य को साध कर आपके बच्चों को महान बनाइए। Let them fulfill your plans absolutely. उन्हें आपकी योजनाओं को पूरा करने दें। Give them great success in their studies, उनकी पढ़ाई में एक बड़ी सफलता उन्हें दें। success in their talents, उनकी प्रतिभाओं में सफलता, success in their professional career. उनके पेशेवर कैरियर में सफलता। Let them reach their goal in Jesus' name. यीशु के नाम से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने पाएं। Let them get great accolades and great medals and honor. उन्हें बड़ी प्रशंसा, महान पदक और सम्मान प्राप्त हो। We receive it for your glory, हे Lord. प्रभु, हम इसे आपकी महिमा के लिए स्वीकार करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। God bless you, my friends, and have a month of hitting your target from today. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्रों। यह महीना आपके लिए लक्ष्य को हासिल करने का महीना हो। Continue to like this video if you're watching it on YouTube. Send it to all your friends so it will be a blessing. इस वीडियो को लगातार देखते रहें, अपने दोस्तों तक इसे बांटें ताकि वो भी आशीष And पाएं। subscribe to this channel. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Continue to stay in the Lord and have this victory. प्रभु में निरंतर बने रहें और इस विजय को प्राप्त करें।